ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ P ਐਂਡ Q, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ F, P ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਇਜ਼ F, Q ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਇਜ਼ F। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0, 60, 90, 120, 180 ਮੀਨਸ ਜੋ ਕਾਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ यूज ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਗਲ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣੇ, ਐਂਗਲ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣੇ, ਐਂਗਲ ਵੇਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ 0 डिग्री है, फिर 60 डिग्री है, फिर 90 डिग्री है, फिर 120, 180 ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਗਲ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। P ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ F, Q ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ F, R ਵੀ F ਦੀਆਂ ਟਰਮ ਚ ਆਊਗਾ। P is F, Q is F, R ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ F ਦੀਆਂ ਟਰਮ ਚ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਸੋਲਵ ਕਰੇ। ओके, आंसर जो ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਿਓ। when angle is 0 degree resultant is 2f, when angle is 60 degree when angle is 60 degree ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ √3 ਟਾਈਮਸ ਹੈ। when angle is 90 degree ਉਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ √2 ਟਾਈਮਸ ਹੈ। and when angle is 120 degree ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ F, and 180 ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ ਰਿਹਾ 0। ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਮਿਊਟ ਰੱਖਿਓ, हैंड रेज करियो जिदे जिदे सारे आंसर आ गए। ठीक है बेटा, ओके बेटा डाउट जरूर पुछियो नाल, जे किसी का हजे कोई भी आंसर रहिंदा है। 120 वाला केस देखियो बेटा, 120 ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹ ਰਹੇ cos 120 है -12। ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ √f² + f² -f²। 2 कैंसिल हो गए, 2 कैंसिल हो गए, वैल्यू आ गई f² + f² -f², √f² और दिस इज इक्वल टू f। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟਰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ f² + f² ਕਰਨਾ। ਲਓ ਹੁਣ 180 ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ, 180 ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਐਟ 180 डिग्री। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ f² + f² -2f² ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ +2f² cos 180 is -1, cos 180 है -1 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ f² + f² -2f² ਅੰਡਰ ਰੂਟ, ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ 0, ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ 0। ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ f ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ, ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ f ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜੇ f ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो रिजल्टेंट कितना आऊगा 0, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। p - q हो जाता है 180 से, f - f हो जाएगा।
तो वैल्यू क्या होगी यदि 0? थैंक यू वैल्यू आ गई अपने को 0। हाँ जी, अगला क्वेश्चन नोट करें बेटा, दैट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड p एंड √2p, इन्हां दा रिजल्टेंट दिता होया ਆਪਾਂ ਨੂੰ √5 टाइम्स p। रिजल्टेंट की वैल्यू है दैट इज √5 टाइम्स p। और इत्थे पे एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट एंगल बिटवीन वेक्टर। सॉल्व करे थे, कैलकुलेट एंगल बिटवीन वेक्टर। Resultant of two vectors of magnitude p and √2p is √5 times p. इसे कैलकुलेट करने, कैलकुलेट एंगल बिटवीन them, एंगल कितना आ रहे हैं। ओके, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ p, ਹੈਗਾ √2p, मतलब p ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ p and q is √2p। r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ √5t, मतलब √5 times p is equal to root of p square plus √2p the square plus 2 into p into √2p into cos theta। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ cos theta ਸੋल्व ਕਰਨਾ ਹੈ। दोनों साइड से ਆਪਾਂ कर देने स्क्वायरिंग, इधर भी स्क्वायर करता, इधर भी स्क्वायर करता। जिन्हों कई बार कहना अंडर रूट कैंसिल करता, अंडर रूट नहीं कैंसिल कर रहे होंगे, आप स्क्वायरिंग कर रहे होंगे। तो वैल्यू बन गई इतने 5p स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू √2p, मतलब 2√2p स्क्वायर cos थीटा। 5p square is equal to p square plus 2p square plus 2√2p square cos theta। तो अपने को कंडीशन की आ गई थे अपने को, दैट इज 2√2p square into cos theta, दैट इज इक्वल टू 5p square minus 3p square कर देंगे। वैल्यू रहेगी अपने को 2p square। तो इतने अपने को 2√2 है, cos थीटा की वैल्यू आ रही है 2/2√2 और आप कहते दिस इज 1/√2। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा इज 45 डिग्री। इन दोनों वैक्टर्स के विच अपने को एंगल आ गया, इत्थे आपां एंगल कैलकुलेट कर लिया। दो दा मैग्नीट्यूड दिता होया सी, नाल आपां ओदे एंगल दी वैल्यू सॉल्व करनी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हुण अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन इज resultant of two unit vectors is also a unit vector। Resultant of two unit vectors is also a unit vector। ऐसे आप पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट करने एंगल बिटवीन देम, कैलकुलेट एंगल बिटवीन देम। दो वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है, उन्होंने रिजल्टेंट भी आ रहा है यूनिट वेक्टर। बिना हिंट तो पहले इन्हों ट्राई कर। रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर। कैलकुलेट करना पैना एंगल कितना आ गया। So 60 degree, 120 degree, 60 degree, 120 डिग्री। आंसर इज 120 डिग्री। सीधा सीधा आ रहा है बेटा, हैंड रेज करिए। ओके, अंशिका, हर्षित, अमरदीप, देवेंद्रा, दिव्यांशु, पारुल, गौतम, माहिर, प्रफुल्ल, लवेश, हरमन, माधव, गुरमन, तरुण, राजवंत, तानिश, ऋतु, पलक, बहुत जने लागे। गुड। देखियो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ that resultant of two unit vectors is also a unit vector। मतलब दो वेक्टर है, जिवें ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ 1 p ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1, p is 1, q मैग्नीट्यूड भी है 1, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ भी ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1, सारी 1 है।
ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਲਗਾਇਆ that r square is equal to p square plus q square plus 2pq cos theta। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ p ਵੀ 1 ਲੈ ਰਹੇ, q ਵੀ 1 ਲੈ ਰਹੇ, r ਵੀ 1 ਲੈ ਰਹੇ, cos theta ਕੱਢ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਆ ਵੀ 1 ਹੈ, ਆ ਵੀ 1 ਹੈ, p ਵੀ q ਵੀ 1 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, plus 2 into 1 into 1 into cos of theta। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ cos theta ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ cos theta ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ -1/2। cos theta is -1/2। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕਰ ਲਿਆ that cos theta ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1/2 ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, that is at 120 ਡਿਗਰੀ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। cos theta is -1/2, so theta is equal to 120। बेटा माइक्रोफोन म्यूट कर लो, नहीं फिर जो तुहाडे झिड़कां पैंदियां ते मैनूं भी सुणदियां। ओके इत्थे ना आपां सोचो एक मिनट, थीटा 120 डिग्री आप पहला हुणे जिहड़ा आपां कह लो एक शॉर्टकट बना के हटे आए कि एफ ते एफ दा रिजल्टेंट एफ आउंदा हुंदा है, वो कदों आया सी 120 ते। प्रैक्टिस का ही फायदा होता है कि आपको जिवें हुण इत्थे डायरेक्ट पता ही लग जाना सी, जिवें आपां हुणे देखिया सी पिछले पेज ते जे एफ ठीक है जी, एफ से एफ इधर रिजल्टेंट है आया सी अपने कोले 120 डिग्री। ओके जस्ट एक मिनट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को दो वेक्टर, देयर आर टू वेक्टर्स, एक का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन एंड अदर इज ऑफ 20 न्यूटन। इस तरह की रिजल्टेंट आ रहे हैं, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द वेक्टर। कंडीशन जो दिखती है दैट इज रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द वेक्टर। मीन्स आप कहिए तो बीटा की वैल्यू अपने लिए 90 डिग्री आ गई, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द वेक्टर। कैलकुलेट करना है आप एंगल बिटवीन वेक्टर्स, कैलकुलेट करना है आप एंगल बिटवीन वेक्टर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट। एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना आ रहे हैं एंड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। आज मैं आप एक डायग्राम बनाई है जिहदे आप रिजल्टेंट नूं P एंड Q का रिजल्टेंट P दे परपेंडिकुलर आ रहे हैं, P ते Q का रिजल्टेंट P दे परपेंडिकुलर आ रहे हैं, P नाल इहदा एंगल 90। इत्थों आपां समझ लिया कि जिहड़ा स्मॉलर मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड का वेक्टर है ਉਹਦੇ परपेंडिकुलर है। इत्थे आपां कंडीशन बन लगावांगे कि जिवें आपां बीटा कैलकुलेट करदे हैं, बीटा आपां कहने एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद वन ऑफ वेक्टर। हुण P दे नाल जिहड़ा एंगल बीटा आ रहा है, बीटा दी वैल्यू 90 दित्ती है, बीटा दी वैल्यू आपां नूं 90 डिग्री दित्ती है। जे आपां P नाल एंगल कढदे हुंदे हैं, P दे नाल आपां एंगल कैलकुलेट करदे हैं, आपां कहांगे tan बीटा, tan बीटा दी वैल्यू कितनी हुंदी है Q sin थीटा ओवर P plus Q cos theta, Q sin theta over P plus Q cos theta। ते बीटा देता 90 डिग्री ते tan 90 कितना हुंदा अपने कोले इनफिनिटी। हुण ये वैल्यू इनफिनिटी है, इनफिनिटी दी दो कंडीशंस आ सकदी अपने कोले। कोई वैल्यू इनफिनिटी होने लई दो कंडीशंस हो सकदी है, या तो हो सकदा है कि न्यूमरेटर की वैल्यू ही इनफिनिटी हो जाए, जिहड़ी कि है ही नहीं। Q आप कह रहे हैं Q की वैल्यू लार्ज मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, चलो Q की वैल्यू अपन दित्ती है 20, P दी दित्ती है 10,
ਤਾਂ ਹੁਣ q into sin थीटा करके एंगल कुछ भी आ जाए वैल्यू इनफिनिटी ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ sin ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈल्यू ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 20 ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਵੈल्यू ਇਨਫਿनिटी ਹੋਊਗੀ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ that anything upon 0 is infinity that means denominator ਦੀ ਵੈल्यू 0 ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈ p plus q cos theta p plus q cos theta जो डिनोमिनेटर है ਇਹਦੀ ਵੈल्यू ਆ ਰਹੀ ਹੋਗੀ 0 ਹੁਣ ਬਸ ਇਹਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ p plus q cos theta ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਥੀਟਾ ਦੀ ਜੋ ਵੈल्यू ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ cos theta ਦੀ ਵੈल्यू ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਪਾਂ cos theta ਦੀ ਵੈल्यू ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ cos theta ਦੀ ਵੈल्यू ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ अपने को रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी आ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ p ਸਮਾਲਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸੀ 10 plus 20 cos theta is 0 cos theta ਦੀ ਵੈल्यू ਆ ਗਈ -12 ਤੇ ਥੀਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 120 ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सॉल्व कर रहे थे रिजल्टेंट आप लगाया होगी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा का अंडर रूट cos थीटा की डायरेक्ट वैल्यू लिख ली अपन दैट इज -1/2 रिजल्टेंट आ रहे अपने को 10√3 रिजल्टेंट आ रहे 10√3 ये अपने को मैथमेटिकल मैथड सी है ज्योमेट्रिकल मैथड देखो तो शायद काफी सौखी आ जाती है जे आप सीधा ही इथों कह दिए आल अपना क्यू वाला सी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड अपन दिता होया सी 20 p वाले का दिता होया अपन 10 बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जी आप इस ट्रायंगल च देखिए बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अपने कोले 1/2 आ रही है तो इथों वाला एंगल आप कर सकते हैं 60 आ गया cos 60 अपने कोले 1/2 हुंदा इधर वाला एंगल 160 आ गया तो आ एंगल जो वैक्टर्स का एंगल है ये 120 आ गया आही एंगल कटना सी आपां 90 डिग्री ट्रायंगल से ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ 20 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ 10 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆ ਗਿਆ 20 ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ 10 ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ 10√3 ਇਹ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਮੈਥਡ ਹੋ ਗਿਆ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ